مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ دکن کی ہر چھوٹی بڑی سرگرمی پر ہماری نظر، لیکن آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبر جو کرے آپ کو بیدار۔ سیاست کے گلیاروں سے روزمرہ کی زندگی دکن کے گوشے گوشے سے آپ تک خبریں پہنچاتا دکن نامہ، روزانہ شام 6:30 بجے۔ بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی، خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر۔ دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبر نامہ۔ UPA حکومت کے تقریباً 10 سال اور عملی اقدامات، آج اسی پر بات کر رہے ہیں۔ بہت سارے خاص مہمان یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کانگریس کے بھی ہیں، دوسری پارٹیوں کے بھی ہیں اور سوشل ورکر بھی ہیں۔ اور اب آپ کے پاس آئیں گے صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو، جیسے ہم نے بات کی الگ الگ خیالات جو ہیں وہاں پر آئے ہمارے سامنے، 10 سالوں کو کس طریقے سے، تقریباً 10 سال ہونے والے ہیں، کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا کچھ کھویا، کیا کچھ پایا؟ جہاں کچھ ہونے کی بات ہے، ٹھیک ہے کہ کچھ تو ہوا ہے، لیکن جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اور جو اس ہونے کی رفتار ہونی چاہیے تھی اور جو پیمانے مقرر ہونے چاہیے تھے وہ کہیں پائے نہیں جاتے۔ اب رہ جاتی ہے بات یہ کہ صاحب جہاں بالکل نہیں تھا کچھ تو ہوا ہے۔ تو یہ اس وقت پورے ملک کا ٹرینڈ چل رہا ہے۔ پچھلے 15 سال میں، یہ 15-20 سال کے اندر نرسمہا راؤ صاحب نے ایک فنڈ شروع کیا تھا کہ صاحب ہر پارلیمنٹ کے ممبر کو انہوں نے فنڈ دیا تھا کہ اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں ترقیاتی کاموں میں، اور وہاں سے وہ چیز آج تک بڑھتے بڑھتے چل رہی ہے۔ اسی میں بہت ساری چیزیں اضافہ بھی ہوتی چلی جا رہی ہیں، تو اسی میں یہ ساری چیزیں، وظیفے بڑھ جانا بچوں کے، یہ کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے، نہیں، لیکن بنیادی چیز ہے۔ جو غریب بچے ہیں جو اسکول تک نہیں جا پاتے، میں وہیں آ رہا ہوں، جو اچھی تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، ان کے لیے میں وہیں آ رہا ہوں۔ اس کے لیے گورنمنٹ کو کالجز کھولنے چاہیے، اس کے لیے گورنمنٹ کو وہ چیزیں پرووائڈ کرنی چاہیے اور وہ مفت ہونی چاہیے، جیسے بیکورڈ کے لیے، بلکہ کہیے کہ دلتوں کے لیے جس طرح رائٹ ٹو ایجوکیشن بھی آ گیا ہے، رائٹ ٹو ایجوکیشن، تو اس کی وجہ سے بھی سچر کمیٹی نے کہا کہ صاحب مسلمان جو ہے تعلیم میں بہت پچھڑے ہوئے ہیں اور دلتوں سے بھی زیادہ پچھڑے ہوئے ہیں۔ تو گورنمنٹ نے کیا کیا کہ صاحب مسلم جو 80-85% والے اضلاع ہیں یا آبادیاں ہیں، وہاں کچھ اسکول قائم کیے جائیں، لڑکیوں کے لیے بھی کیا جائے، 25% آبادی والے، 25 والے یا 50 والے بڑھا دی گئی ہے، لیکن اس میں پریکٹیکل کیا ہو رہا ہے؟ میں آپ ہی کے علاقے کی مثال آپ کو دے دوں، دیوبند ایک جگہ ہے، عالمی طور پر مشہور جگہ ہے مسلمانوں کی، وہاں پر بھی مسلمان بڑی تعداد میں ہیں اور وہ تعلیم کا رونا وہاں بھی ہے۔ وہاں پر ایک اسکول ملا، لیکن وہاں کے جو لیڈرز تھے انہوں نے جو دیوبند میں قائم ہونے والا اسکول تھا یا دیوبند کے اطراف کسی مائنورٹی اکثریت والے گاؤں میں قائم ہونے والا اسکول تھا، وہ میجورٹی اکثریت والے گاؤں میں چلا گیا۔ اور یہ تصویر ایک جگہ کی نہیں ہے، اکثر جگہوں پر یہی چیزیں ہو رہی ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ بیوروکریٹس جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا ذہن وہ بنا ہوا ہے کہ ہم ان کو کتنا محروم کر سکتے ہیں، ان کے اوپر ایک بند لگانے والی طاقت کی ضرورت ہے، جو میرے خیال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ابھی اس چیز کو پوری طرح اپنے اندر وہ اتنا زیادہ کانفیڈنس نہیں قائم کر پائے یا وہ طاقت محسوس نہیں کرتے کہ ہم ان پر جو ہے وہ لگام کس سکیں کہ جو چیزیں حکومت میں طے کی جاتی ہیں وہ زمین پر بھی عملی طور پر سامنے آنی چاہیے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے حق میرا ہے، پہنچ رہا وہاں ہے، ہم محروم ہیں۔ یہ بالکل یہ ایک بڑی بات انہوں نے میں بہت بڑی بات کہی، میں اس کا جواب بھی دے دوں۔ انہوں نے بہت صحیح بات کہی اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک بنیادی بات کو عابد صاحب نے پکڑا ہے۔ اس چیز کا احساس ہم لوگوں کو بھی ہوا اور جو رپورٹس آئیں، جو فیڈ بیک جب لیے گئے، تو جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس گاؤں میں اسکول کھولنا تھا، چلا گیا دوسرے گاؤں میں، ضلع وہی رہا، مائنورٹی کنسنٹریشن ضلع رہا اور پتہ چلا کہ وہ پیسہ بھی خرچ ہو گیا اور وہاں آس پاس مسلم آبادی نہیں۔ اس چیز کو دیکھنے کے بعد اس پہ کافی بحث کی گئی اور اس کے بعد میں اس کو اور نیچے لیول پہ، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ بلاک لیول پہ ذرا سی اور وضاحت کر دوں، تو اس میں ہوتا پھر یہ ہے کہ وہاں مائنورٹی کے نہ بچے پڑھنے جا سکتے نہ بچیاں تو بالکل نہیں جا سکتے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں۔ اسی لیے حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ ہر ضلع لیول پہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی بنائی جائے، آپ لوگوں کی کچھ سماج سیوکوں کو لے کر کے، کچھ NGOs کو لے کر کے، کچھ اور پولیٹیکل لوگوں کو لے کر کے، ضلع لیول سے لے کر کے پردیش لیول پہ اور آل انڈیا لیول پہ ایک مانیٹرنگ کمیٹی ہو جو آپ لوگ گھوم کر کے دیکھیں اور بتائیں کہ یہاں پہ کیا کمی ہے اور
पूरा पैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लग रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब आप एक तरह से एक डंडा लेकर के वहां के एडमिनिस्ट्रेशन पे बैठेंगे कि जो माइनॉरिटीज का पैसा आया है, जो मुस्लिम्स का पैसा आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चर कमेटी मुस्लिम्स के लिए बनाई, ये पहली कमेटी है जो मुस्लिम्स का जिसमें नाम दिया गया था, माइनॉरिटी नहीं दिया गया था। लेकिन इसका भी मुझे अफसोस है, हम लोग लड़ भी रहे हैं कि जब ये मिनिस्ट्री में और प्लानिंग कमीशन में जब ये चीज आती है तो वहां मुस्लिम नाम हट करके माइनॉरिटी जुड़ जाता है। अभी अनवर भाई ने कहा कि इसका तालीम में तो हो रहा है लेकिन नौकरियों में नहीं हो रहा है। मैं एक आपको छोटी सी फिगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की मैं होम मिनिस्ट्री से जो हमने निकलवाई थी एक आरटीआई के जरिए से, जब सच्चर कमेटी और उससे पहले जब यूपीए गवर्नमेंट आई है तो हमारी तादाद सेंट्रल फोर्सेस की बात कर रहा हूं चूंकि होम मिनिस्ट्री से आंकड़े निकले थे, हमारे करीब 6% के करीब थी सारे सेंट्रल फोर्सेस में, सीआईएसएफ में, बीएसएफ में, था वो उतना रोड में। अब वो पिछले साल तक 11.8% हो गई है, जिसमें सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट आसाम से हुआ है। तो हम समझते हैं कि ये चीजें अगर हम, और 15 पॉइंट प्रोग्राम का खासतौर से हर महीने इस बात को सारे बैंक से एक रिपोर्ट आती है कि कितने लोगों को पैसा दिया गया है, उसमें माइनॉरिटीज के लोगों को कितना पैसा दिया गया है, और अगर नहीं दिया गया है, आपका लोन रिजेक्ट हुआ है तो उसकी क्या कारण थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से आपको पैसा नहीं दिया गया है। तो ये मॉनिटरिंग का थोड़ा सा फर्क पड़ रहा है। लेकिन मैंने शुरू में जैसे कहा था कि जितना फर्क पड़ना चाहिए, जितने तेजी से काम होना चाहिए उतना नहीं हो सकता है। ये आपने भी अभी बताया कि ब्यूरोक्रेसी में सब जहां एक ऐसी जहनियत बैठी हुई है जो कहीं हम लोगों को काम नहीं करने देती। जब हम लोग का मसला आता है तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, उसमें वो लोग अड़चने डालते हैं। आप सब नौजवान हैं, आपको अच्छी तरह से इस बात का अंदाजा। आपने जो एक इशारा किया था कि भाई जो अफसरान हैं उनकी जहनियत जो है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है और वो चाहते हैं कि विकास के काम या तरक्की के काम ज्यादा ना हो। मैं आपको एक आंकड़ा बता रहा हूं, 2180 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय खुलने थे। मुस्लिम आबादी जहां पर ज्यादा है, 20% के आसपास है वहां पर, और वो 2180 में से 266 खोले गए हैं। अगर 20% के हिसाब से हम बात करें तो 400 कुछ बैठते हैं वो। तो ये जो इम्तियाजी सुलूक है ये लगातार बढ़ता जाता है आपके साथ, तो ये बेसिकली वहां पर काम करने की जरूरत है। ये मैं मान रहा हूं आपकी बात, इसीलिए मॉनिटरिंग कमेटियां बनाई जा रही हैं जो इस चीज को देखें। इसके अलावा अगर आप देखें कि पिछले 4-5 सालों में जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस थे उसमें 1.5 लाख, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, 1.5 लाख नए कमरे बने हैं, सब मिला करके कहीं 4 बने, कहीं 2 बने, कहीं जो कि जिसको गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है। मौलाना आजाद फाउंडेशन जो है वो इतनी मदद कर रही है, इतनी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की मदद कर रही है कि मैं नहीं समझता हूं कि पिछले 5-10 सालों में किया था। उसका पैसा जितना था उसका चौगुना पैसा हो गया, 50 करोड़ से 700 करोड़ रुपया हो गया है। तो ये देखिए, ये मैं नहीं कहूंगा कि नहीं हो रहा है, लेकिन जो हो रहा है वो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे की डिमांड करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए कि हमें। यहाँ पे जैसे सलीम साहब ने वक्फ बोर्ड का जिक्र किया, वक्फ बोर्ड क्या है कि एक नीम गवर्नमेंट इदारा है, मुसलमानों का भी है, गवर्नमेंट का भी है। वहां पर जो हमारे ही बीच के लोग बैठाए जाते हैं, लेकिन वो होते वो है जो गवर्नमेंट में या पॉलिटिकल पार्टीज में अपने नंबर बढ़ाने के लिए हर वो काम करते हैं कि जो वहां के हुकूमत के चीफ के चश्मे अबरू का इशारा वो समझ लेते हैं। तो नतीजा ये होता है औकाफ की प्रॉपर्टी को वो खुर्द-बुर्द करते हैं, मुसलमानों को जो उससे फायदा होना चाहिए वो नहीं होता, और हुकूमत ऐसे ही लोगों को चुन चुन के वहां बैठाती है। मैं आप इस बात पे एक बात चाहूंगा कि घर को आग लग गई घर के चिराग से। अगर सही मानों में देखा जाए कि हमारे मसाइल कहां हैं और क्यों नहीं हल हो रहे और क्यों पैदा हुए, तो उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मतलब वो उन रहनुमाओं को लेना चाहिए जो पिछले 50 सालों से माइनॉरिटीज के नाम पे वोट भी मांग रहे हैं और जो माइनॉरिटी और उनके, और जब आ जाते हैं वो सियासत में, तो सबसे पहला काम होता है कि मुसलमानों को दबा करके आगे बढ़ो। अगर कहीं इनके मसाइल हल हो गए तो हमको कौन पूछेगा? सवाल ये पैदा, ये जिम्मेदारी आप लोगों की भी है, आप जो बोल रहे हैं आप लोगों की भी हमारी है, और सिर्फ हम जिम्मेदार है, कोई इसकी पार्टी या कोई हुकूमत जिम्मेदार नहीं। सच्चर कमेटी को बने हुए 7 साल हो गए। 7 साल के बाद ये पूरे 10 साल का हम जायजा ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक। पिछले 2 सालों से कुछ हलचल हुई है, कुछ करना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कुछ कमेटी बननी चाहिए, और अब जब आखिर में आप आ गए हैं, आखिरी वक्त पर जब आ गए हैं, अभी तक बहुत सारी चीजों पे सोचना शुरू किया है। अभी आपने बताया कि 69 रिकमेंडेशन थी सच्चर कमेटी की, उसमें से 63 पर अमल हो गया है। के रहमान साहब जो मिनिस्टर हैं इस महकमे के, वो उन्होंने फरमाया 72 रिकमेंडेशन थी, उसमें से 69 पर हो गया है, सिर्फ 3। भाई ये सब अगर हो गया है, यानी तकरीबन 90% उनके मुताबिक हो चुका है। अगर 90% हो गया है, ये कहने की काम धीरे धीरे होगा, वो कहीं नजर आना चाहिए। वो कहीं नजर देखिए, आंकड़े हम बता सकते हैं।
फाइल्स में सारी चीजें बता सकते हैं। ये कुछ आंकड़े हैं मेरे पास भी। आप जरा मुसलमान महल्ले में जाके पूछिए कि क्या उनकी तालीमी मियार में, उनकी बच्चियों के मियार में, उनकी नौकरियों के रेशो में और हमारे बच्चों को जो सहूलत। सलीम साहब, आप एक चीज तो मानेंगे, सलीम साहब एक चीज तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है समाजी आदमी हैं और लोगों के बीच जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी जो लीडरशिप है उसके अलावा समाज की खुद की भी है। क्योंकि हमने देखा है कि जिस आदमी ने या जिस कम्युनिटी ने आगे बढ़ने की कोशिश की है, वो भले ही मुस्लिम कम्युनिटी हो या कोई भी हो, वो आगे बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो समाज की भी है। हमारे लोग जो है वो उतने बेदार नहीं है, उनको यही पता नहीं होता कि कौन कौन सी स्कीम्स चल रही है, कौन सी नहीं। मैं तारीफ करूंगा हमारे खिदवाई साहब की कि इन्होंने तस्लीम किया इस बात को कि हम मुतमईन नहीं हैं। लेकिन आप देखिए कॉस्मेटिक चेंजेस किए जा रहे हैं। कॉस्मेटिक्स को ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे बहुत सारी चीजें हो गई हैं और आखिरी वक्त में करने की कोशिश की जा रही है, और जितना किया जा रहा है उससे सैकड़ों गुना ज्यादा जो है उसकी तशहीर पर, उसके प्रचार पर और उसकी लेकिन और उसका दूसरा नुकसान ये है कि आप खुद प्रोवोक कर रहे हैं, जो कम्युनल फासिस्ट फोर्सेज हैं उनको प्रोवोक भी कर रहे हैं, वो भलाई का फिर इल्जाम लगाते हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं, और जो कर रहे हैं उसको इतना बड़ा करके दिखाया जा रहा है। अपीजमेंट की बात करते हैं। अच्छा अली अनवर साहब, आपको क्या लगता है? बहुत सारी बातें हुई हैं, 10 साल के अंदर ये होना चाहिए था और ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें हैं, सिक्योरिटी का बड़ा मसला है मुस्लिम तबके के साथ। हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, मुस्लिम तबके को सबसे बड़ी शिकायत है तालीम है, रोजगार है, लेकिन जो सिक्योरिटी का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए जो है कम्युनल वायलेंस बिल लाना चाहिए था। उसकी बात भी हो रही कि अब लाएंगे, कब लाएंगे, पता नहीं लाएंगे कि नहीं लाएंगे, ये जो ईमानदारी की बात जो है ये करेंगे। लेकिन आपको कैसा लाएंगे, कैसा लाएंगे, रिजर्वेशन कैसा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसा कोई भी बिल ले आएंगे वो बिल और ज्यादा हमको परेशान करेगा, पुलिस वालों को और ज्यादा ताकत देगा, दंगे से जिसका घर जला है उसी को मुजरिम बनाएगा, जो विक्टिम है उसी को विक्टिमाइज करेगा। ऐसा बिल अगर आता है तो हम उसकी मुखालफत होगी, बिल्कुल वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि बहुत सारे काम होने थे, सिक्योरिटी का बड़ा मसला है। और एक बात होती है हमेशा ही रिजर्वेशन डिमांड आप भी करते हैं, आपकी भी जो है वो पार्टी भी कहती है, जिस तंजीम से आप जुड़े हुए हैं वो भी जो है कहीं ना कहीं उसकी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स में भी जाते हैं जहां इसकी जो है तारीफ करते हैं कि नहीं मिलना चाहिए। सवाल ये है कि भाई जो यूपीए कर रही है, आप यूपीए का हिस्सा तो है नहीं, लेकिन अपोजिशन में होने के नाते कितना प्रेशर जो है, कितना प्रेशर हो जाएंगे, बिल्कुल कितना प्रेशर आप लोग बना पाते हैं। जो बातें तो हो जाती हैं लेकिन हकीकत में जो होना चाहिए आप लोगों की तरफ से भी शायद वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये लोग भी जो है वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। अंबेडकर ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी। वो बात कही थी, पॉलिटिक्स इज द मास्टर की ऑफ एवरी लॉ। अगर उर्दू में हम तर्जुमा करें तो सियासत जो है तमाम दुनियावी मसाइल का माने इकलौती चाबी है, हल है, मास्टर की। देखिए पॉलिटिक्स में बड़ी हम लोगों को इस पर गौर फिक्र करना चाहिए। सभी पार्टियों में, कोई एक पार्टी की बात नहीं करता, असेंबली की, पार्लियामेंट की मैं बात करें, सियासी नुमाइंदगी हमारी घट रही है चारों तरफ घटे। कई असेंबलीज तो ऐसी हैं जहां पर हम नील हो गए। हम चाहते हैं कि एक टोटलिटी में गौर फिक्र किया जाए, देखा जाए मामले को। तो टोटलिटी में हम ये कह रहे हैं कि ये मामला घट रहा है। देखिए हमको अगर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हमारा होगा, हम अपने हैसियत से ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, हमारी जो आबादी है उसके तनासुब से। आज तो सभी तबकों में, हिंदू में एक बढ़ई कहता है, एक लोहार कहता है, एक चमार कहता है, एक पासवान कहता है, यादव, कोयरी, कुर्मी, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, तो सब अपना ये करता है, एक एक हिस्सा ले लेता है अपनी आबादी के हिसाब से। लेकिन हमारी आबादी के हिसाब से हमारी नुमाइंदगी घट रही है। तो इसी के लिए हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने एक जो सुझाव दिया, एक जो रिकमेंडेशन किया कि 341 पर से आप जो रिलीजियस बैन, जो मजहबी पाबंदी आयद कर रही है, जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसने कहा है, उसके जुमले हैं रंगनाथ मिश्रा कमीशन के, कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, उसको फौरन हटाइए। फौरन शब्द का इस्तेमाल किया है। तो उसको आप नहीं हटा रहे हैं, जिसके हट जाने से न सिर्फ सरकारी मुलाजिमत में हमारी नुमाइंदगी बढ़ेगी, बल्कि सियासत में भी 119 पार्लियामेंट की सीट, 1050 असेंबली की सीट रिजर्व है हमारी। हम वहां नहीं खड़ा हो सकते, फायदा नहीं है, हम वहां नहीं खड़ा हो सकते हैं। तो उसके दरवाजे भी खुल जाएंगे। बिल्कुल। तो इसकी तरफ, ठीक इन्होंने कहा, इसकी तरफ, इसके लिए मुसलमान जो ट्रेडिशनल मुस्लिम लीडरशिप है, रवायतन जो लोग सियासत पर, हिंदुस्तान की मुस्लिम सियासत पर
काबिज हैं, उनकी नीयत में भी खोट है। सारे पॉलिटिकल पार्टीज के मुस्लिम लीडरशिप एक जहां पे बैठे और जिस तरह से हुकूमत कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलाई जाती है, 10 हमारे मिनिमम प्रोग्राम ले, 10 हमारे मिनिमम मसाइल ले कि ये 10 मिनिमम मसाइल है जिसपे बीजेपी भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, आप भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे, वो भी लड़ेंगे। ये सुझाव बहुत अच्छा है। तो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यूपीए ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन बना के रिकमेंडेशन दे दिया है, सुझाव सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर वो एफिडेविट मांग रहा है, उसमें आपकी सरकार वाकई बहुत अच्छा है। एक नया सुझाव, एक नया फार्मूला का जो ऑलरेडी एक फार्मूला है जो उसी का बनाया हुआ है, उस पर आप कायम रहिए। बिल्कुल। हमारे मसाइल में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। बात हो रही है कि अक़लियती तबके के लिए पिछले 10 सालों के अंदर क्या कुछ हुआ है, उनकी तरक्की के लिए कितने काम हुए। अच्छी बात यह है कि जो हमारी लीडरशिप है वो ईमानदारी से इस बात को कबूल कर रही है कि वाकई बहुत सारे काम होने अभी भी बाकी है। एक ब्रेक लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद कि जो काम नहीं हो रहे हैं उसके नुकसान क्या है और कम्युनिटी को किस तरीके से आगे आकर अपने हक को हासिल करना चाहिए। एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बने ये हम सफर। बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। चेहरे पर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे आपका असली चेहरा छीन सकते हैं। ट्राई मिलाज स्किन क्रीम, इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात। हाँ, जिंदा तिलिस्मात। अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार, खांसी, जुकाम, सर दर्द, बदन दर्द, जो भी हो, हर मर्ज की दवा। जिंदा तिलिस्मात, बरसों से हमारी सेहत का रखवाला। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। हमारे मसाइल में आज बात हो रही है यूपीए हुकूमत की और बात यह भी हो रही है कि इस तबके के लिए जो है अक़लियती तबका जिसको कहते हैं उसके लिए यूपीए हुकूमत ने क्या कुछ किया है, यूपीए हुकूमत ने, और क्या कुछ होना चाहिए था। जी, आपको क्या लगता है कि बहुत देर से आप बातें सुन रहे होंगे, नतीजा क्या निकला आपके जहन में? क्या लगता है कि नहीं वाकई ये काम हुए लेकिन ये काम होना बाकी है? इमरान क़िदवाई साहब के एक जुमले से मुझे सख्त इख्तिलाफ है। उन्होंने ये बात कही कि आतंकवाद का एक चेहरा यूपीए गवर्नमेंट ने और दिखाया कि ये भी एक चेहरा है। इसका मतलब ये मान रहे हैं आप कि मुसलमान एक चेहरा था पहले से, एक चेहरा और सामने आ गया। जबकि जितने भी नौजवानों की गिरफ्तारियां अभी तक मुल्क में हुई हैं, कहीं पर भी ये साबित नहीं हो सका कि वाकईतन ये लोग किसी किस्म के इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाई में मुलव्विस थे। जबकि जो लोग मुलव्विस पाए गए, जिनके बारे में प्रूफ मिल चुका है, उसके बारे में हुकूमत कोई इकदाम नहीं कर रही। और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक चेहरा और भी हमने दिखा दिया। तो ये बात जो है बहुत मजाक खेज है। दूसरी एक बात ये है कि एनडी हुकूमत के बाद जब यूपीए हुकूमत आई तो उसने ये कहा कि हम जो है कोटा हटा देंगे। उस वक्त कोटा था। कोटा के बाद यूएपीए जब लेकर आए उससे भी ज्यादा भयानक था, उससे ज्यादा और गिरफ्तारियां हुई और मसाइल मुसलमान नौजवानों के हुए। आज भी देखिए आपके मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारियों का सिलसिला बाकायदा जारी है। कहीं भी कोई फसाद होता है, कहीं कोई मामला होता है, झूठे मुकदमा में फंसाए जा रहे हैं और 20-20 साल के बाद रिहाई हो रही है और उसके बाद उनके लिए कोई कंपनसेशन नहीं है। ये सबसे ज्यादा बड़ी शिकायत है। जो वजीर दाखिला हैं उनके लेटर के बाद अगर ये इस तरह के हालात है तो फिर वो वाकई जो है। देखिए एक शिकायत ये भी अच्छा आपने इशू उठाया कि ऐसा लगता है हुकूमत सीरियस नहीं है बल्कि मजाक करती है मुसलमान के जज्बात से। ये लेटर भी एक जज्बात से मजाक है। आप ऐसे वक्त में एक शोषण छोड़ देते हैं, भाई ऐसा मत कीजिए, ऐसा कीजिए, और वहां पर फिर दूसरी हुकूमत इसका रिएक्शन में कुछ ऐसी कार्रवाइयां कराती हैं
جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعی مسلمان نوجوان اس طرح کے معاملات میں ملوث ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں؟ مسلمانوں کے لیے کیول دعوے تو ہوتے رہے لیکن سارے کھوکھلے ثابت ہوئے. جیسا کہ سلمان خورشید صاحب وقف بورڈ اس کے مسلم اس کے کیا کہتے ہیں منترالیہ تھے اور سارا پیسہ واپس چلا گیا. کوئی بھی مسلمانوں کو کسی بھی طریقے سارا نہیں گیا, کچھ پرسینٹ ہی وہ جو ہے کچھ فیصد حصہ ہی اس کا استعمال کر پائے. وہ پیسہ بانٹ بھی نہیں پائے, ان کو اتنا سمے نہیں ہوتا, وہ پیسہ ہی نہیں بانٹ پائے. تو جو کیا کہتے ہیں ایک میں کہوں گا, ابھی بھائی کہہ رہے تھے جو دہشت گردی پہ تھا, ابھی جو ہمارا نیا ایک بہت بڑا حادثہ یو پی میں ہوا, اس میں راہل جی نے تو ہمیں سیدھا سیدھا ٹارگٹ بنا دیا ہے کہ مظفر نگر کے مسلم نوجوانوں کے ISI سے سمبندھ ہے. تو اس میں اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ اچھا, اس کا جواب جو ہے وہ عمران قدوی صاحب ہو سکتا ہے, اس بات کو کہتے ہوئے جھجکے, جواب دیتے ہوئے جھجکے, لیکن اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ بھلے ہی چلو وہ IB کے کسی افسر نے ان کو کہا تھا. راہل گاندھی بڑے لیڈر ہیں, پارٹی کے بڑے ذمہ دار جو ہے وہ نوجوان چہرہ بھی ہیں. آپ کو لگتا ہے اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے چونکہ واقعی جو ہے وہ ٹارگیٹ ایک کمیونٹی پھر ہو جاتی ہے؟ عمران صاحب, یہ بات بالکل فیکٹ ہے, یہ بات صحیح ہے, 100% صحیح ہے کہ ٹیررزم جو ہے, آتنکواد جو ہے, وہ کہیں نہ کہیں کمیونلزم کا ہی ایک دوسرا رخ ہوتا ہے جو کہ سامنے آتا ہے, چاہے وہ جذبات بھڑکانے سے آئے, چاہے وہ کسی بات سے آئے. اس میں چاہے انوبھو بھارت کا کیا کہتے ہیں ہو, چاہے کیا کہتے ہیں کچھ نوجوان بچوں کا ہو, اور جذبات میں ہو کر کے اگر ہم اپنی آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں اور ہم یہ کہیں کیا کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بالکل دودھ کے دھلے ہیں, ساری غلطی آپ کی, تو وہ میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ بات بالکل ہم مانتے ہیں اور ہر ایک کو اس کو ایکسپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں جو غلطیاں اپنے اندر ہیں ان کو ہمیں ایکسپٹ کرنے میں کیا ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کو مان کر کے اس کو سدھارنے کی کوشش کریں. بحث نہیں ہو رہی, بحث نہیں ہو رہی, میں آپ سے بات کروں گا کہ اس میں ایسی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ بات ہم مانتے ہیں, یہ ہم بات مانتے ہیں کہ ہمارے جذبات کو بھڑکایا جاتا ہے, ہم کو جذبات میں نہیں آنا چاہیے. ہمارے جذبات میں بھڑکا کر کے بہت سے ایسے کام ہم سے ہو جاتے ہیں جو ہم کو نہیں کرنے چاہیے. اگر کسی جگہ پر ISI نے کچھ لوگوں سے کانٹیکٹ کیا ہے تو اس میں کمیونٹی کا نام لینے کی کہاں ضرورت پیش آ گئی کہ فلاں کمیونٹی کے لوگوں سے کیا گیا؟ صحیح ہے. تو ایک ذمہ دار شخص, ایک بڑی پارٹی کے ذمہ دار وائس پریزیڈنٹ ہیں, اس طرح کی باتوں سے جو ہے ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. ایک طرف کرنا چاہیے. ہمارے ہوم منسٹر جو ہے وہ ایک خط لکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آخری وقت میں خط لکھا ہے, انہوں نے چیف منسٹرز کو کہ مسلم نوجوانوں کو بلا وجہ نہ پریشان کیا جائے, بے گناہوں کی رہائی ہونی چاہیے, عدالتیں بننی چاہیے. پر سوال یہ ہے دوسری طرف آپ اس طرح کی چیز کر رہے ہیں, خط پہ حکومت کتنا سنجیدہ ہے, یہ بھی سوال. بالکل, یہ تو سوال اسی دن اٹھ گیا تھا کہ یہ آخری وقت میں, الیکشن کے وقت میں اعلان کیا گیا ہے, لیکن چلو ہم اس کو بھی مان لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد تو کچھ ہونا چاہیے تھا. اور پھر ابھی فوراً پٹنہ میں جیسے ہی کچھ ہوا اور فوراً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے جو لوگ جن کو دکھایا گیا ہے گرفتار, معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے گرفتار تھے, وہ صرف لانے کی اور پیش کرنے کی ضرورت تھی, اور ایک آرگنائزیشن کا نام آپ لے رہے ہیں. تو ہم کو یہ لگتا ہے کہ کانگریس پارٹی کی حکومت جو ہے, کانگریس پارٹی جو ہے وہ خود جو ہے اس کا ایک بڑا حصہ فرقہ پرستی اور تعصب کی شکار ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی موجود ہے جو صحیح معنی میں فرقہ پرستی کا ذہن رکھتے ہیں, اور اسی کی وجہ اس سے بھی اس کو بھی جو ہے اس ملک کے لیے بالکل اس سے بھی. میں دوسری بات ایک اور عرض کر رہا ہوں, اس میں آ رہا ہوں, بالکل آ رہا ہوں. ایک بات اور مجھے عرض کرنی ہے, وہ یہ آپ نے ریپرزنٹیشن کی بات کی ہے کہ ریزرویشن جس کی رنگناتھ مشرا کمیشن نے سفارش کی ہے وہ ہونا چاہیے, پولیٹیکل ریزرویشن ہونا چاہیے. ہماری نمائندگی کہاں بڑھتی ہے؟ ہماری نمائندگی جیلوں میں بڑھ رہی ہے. سچر صاحب نے لکھا ہے کہ جیلوں میں ہماری آبادی کے تناسب سے کافی زیادہ ہے. تو یہ سوچنے لائق چیزیں ہیں کہ یہ جو نہ صرف لیڈرشپ کو سوچنا ہے, یہ سماج کو بھی, لیکن بات ہم حکومت سوشل ورکرز کو بھی سوچنا ہے, کی ذمہ داری ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنا, قانون ہاتھ میں لینے والوں کو سزا دینا, متعصب آفیسرز کو اکاؤنٹیبل بنانا, ان کو سزائیں دلوانا, یہ حکومت کی ذمہ داری ہے. اور تھوڑی سی ذمہ داری جو سماجک جو یہ ہماری NGOs ہیں, جو سوشل آرگنائزیشن ہیں, میں ایک منٹ, جیسے مثال کے طور پہ کہ میں ایک جہاں گیا, زید پور ایک جگہ ہے, وہاں پہ مسلم کی 80% 70% آبادی ہے, وہاں پہ اسکول کھول دیا گیا ایک لڑکیوں کا. اب وہاں پہ گیا کہ بھائی کیا ہے, تو ان کا صاحب آپ کے یہاں بچیاں آئی نہیں رہی, کوئی ایڈمیشن لے ہی نہیں رہا ہے. تو یہ کام آپ لوگ کرنے پڑے گا, جانا ہے, ان کو جا کر کے بتانا ہے کہ ہم یہاں علی انور صاحب کے پاس بہت سیریس جائزہ مسئلے پر بات کر رہے ہیں, وہی سیریسنس ہونا چاہیے. دیکھیے دہشت گردی کا جو معاملہ ہے بہت سیریس ہے, اور کوئی
हिंदुस्तान का ही मामला नहीं है, पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का मामला, और इससे जो है पूरी दुनिया परेशान है। परेशान, बिल्कुल ठीक है। इसको किसी मजहब से जोड़ करके देखना मुनासिब नहीं, और कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर है तो उसको तो और भी कायदे से उसकी मैच्योरिटी शो होनी चाहिए उसकी बातों से। अब ये देखिए, ये वन वे ट्रैफिक नहीं है, ये इसको समझना चाहिए। अगर मान लीजिए हम मान लेते हैं हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो तो है, दुनिया के और मुल्कों में है। तो देखिए, ये जो वातावरण है, जो माहौल है, उसमें इसके जर्म्स, कीटाणु घूम रहे हैं, वो किसी को भी लग सकते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, वो सारी बीमारी आप देख लीजिए, दहशतगर्दी में जो बच्चे पकड़े जाते हैं, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी मजहब के मानने वाले हों, उनकी उम्र क्या होती है? जो बैंक रॉबरी में पकड़े जाते हैं, जो ट्रेन रॉबरी में पकड़े जाते हैं, जो दूसरे तरह के जराइम में पकड़े जाते हैं, उनकी उम्र क्या है? एक जब किशोरावस्था जो पामी आना हम लोग कहते हैं भोजपुरी में, जब आने लगता है, तो आजकल तो लड़कियों के भी हाथ तड़फड़ा रहे हैं कि हमको काम मिलना चाहिए, वो काम चाहते हैं, ये बच्चे काम चाहते हैं। अगर काम नहीं मिलेगा, लड़का शर्माता है बाप के सामने हर बात के लिए कि पॉकेट खर्चा दीजिए। पर यहाँ एक सवाल ये उठता है कि वो दहशतगर्दी के नाम पर मुस्लिम बच्चों को ही क्यों टारगेट किया जाता है? वो आपकी जगह है, उस पर आप बहस करने वाले हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इस पर भी देखना चाहिए, गौर करना चाहिए। अच्छा, बिल्कुल, मैं वापस आता हूं, ये इशू हो गया और इसको अलग से भी हम डिस्कस करेंगे। मैं वापस जो है आता हूं डेवलपमेंट के काम से। यूपीए हुकूमत ने जो है 2006 में इसकी तश्कील कर दी थी, जो अक़लियती उमूर की जो एक मिनिस्ट्री है। जी, सवाल ये उठता है कि जैसे उन्होंने भी इशारा किया था, कहा था कि भाई सलमान खुर्शीद साहब जब वजीर थे तो बहुत सारे काम वो नहीं कर पाए थे, उसका बहुत बड़ा बजट का हिस्सा जो है वो वापस लैप्स हो गया था, वापस चला गया था। अभी कुछ आंकड़े आए हैं और आरटीआई के जो है जरिए, वो कानून भी जो है आपकी हुकूमत ने दिया है, उसके जरिए बहुत सारे आंकड़े आए हैं कि भाई अभी भी 2012-13 में भी बहुत सारे काम नहीं हो पाए हैं। चाहे वो मौलाना आजाद एजुकेशनल फाउंडेशन की बात हो, बहुत कम जो है वो वहां पर नो डाउट देते हैं, लेकिन वो शराइत जो है कुछ इतनी मुश्किल होती है, सख्त होती है कि भाई जिसकी वजह से वो उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता। ये जो इस तरह के मसले हैं कि भाई आप बजट का पूरा हिस्सा ही खर्च नहीं कर पाते हैं और बातें बड़ी बड़ी हो जाती है। आपने कहा था इश्तिहारात के जरिए बड़ी बड़ी बातें होती हैं, फिर जो अपोजिशन में पार्टियां हैं या जो आपकी मुखालिफ पार्टियां हैं वो कहती हैं मुबराई का काम हो रहा है, तो नुकसान जो है वो कहीं ना कहीं तबके को बढ़ता ही जाता है, लगातार नुकसान होता ही जाता है। बदनामगी भी हो रही है, एक तरफ कह रहे हैं कि मुबराई हो रही है और पता चला कि मिला कुछ भी नहीं है। तो इमरान साहब खुदा ही मिला ना मिसाल ना इधर के रहे ना उधर के, यानी दोनों तरफ से मुसलमानों ही पर मैं मान रहा हूं, काम भी नहीं हो रहा है और जो किया उसको इतना आप कर रहे हैं। तो ये जो है इस पर संजीदगी से जो है वो काम करने की जरूरत है। और मैं फिर यही कहता हूं कि भाई ठीक है, यूपीए हुकूमत की आप नुमाइंदगी यहां कर रहे हैं अपनी पार्टी की, लेकिन जिम्मेदारी जो है आप लोगों की भी है कि भाई आप भी जो है इसमें कहीं ना कहीं अहम रोल अदा करें। बेशक जिम्मेदारी है। और इमरान साहब नहीं, हमने तो ये आपसे कहा क्या कहते हैं कि जैसे कि हमने एक मिसाल आपको दे दी कि स्कूल खुला, उसमें लड़कियां नहीं जा रही हैं क्योंकि हमारे यहाँ वही बात है कि भाई एक मिसाल से काम नहीं चलेगा। बैंक समझिए आप 600 बैंक उन इलाकों में खोले गए हैं जहां पे 60% 40% मुस्लिम्स की आबादी है कि उससे फायदा उठाएं, वहां वो जाके अपने और ज्यादातर बैंकों के अंदर जाकर के देख लीजिए, ज्यादातर बैंकों के अंदर जो मुस्लिम इलाके हैं वहां ब्लैक लिस्ट में है। दूसरा, क्या कभी इस पर कार्रवाई हुई? जिन बैंकों ने, ये इशू है जी, जिन बैंकों ने मुसलमानों को लोन नहीं दिए या जिनका परफॉर्मेंस बिल्कुल जीरो है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे मसाइल में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद इसी हाजिरों को तो जानने की कोशिश करेंगे कि सबको मिलकर के क्या कुछ करना चाहिए। अगर यूपी हुकूमत कुछ कर नहीं पाई, कैसे उसके ऊपर प्रेशर बनाया जाए ताकि आपका काम, आपका हक आपको मिल सके। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। Developing lifestyles, developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. नैना, काश मैं तुम्हें बता सकता मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। जिंदा तिलिस्मात? हाँ, जिंदा तिलिस्मात।
अगर तुम जिंदा तिलिस्मात पे भरोसा करते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम बहुत केयरिंग हो। बुखार